फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो बच्चों? करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक चल रहा है। अभी तो बेसिक इंट्रोडक्शन की है। क्या सीखा अभी तक हमने? इलेक्ट्रिक करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और पोटेंशियल डिफरेंस कल सिखाया, वो क्या है? द वर्क डन इन ब्रिंगिंग एनी चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए फील्ड ऑफ गिवन चार्ज। और पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बताया, only the parameter which determines the flow of charge from one part to the other part। ठीक है। पोटेंशियल का सोर्स क्या लेते हैं? बैटरी और सेल। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द चैप्टर। द नेम ऑफ दिस आर्टिकल इज एक्चुअली ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को शुरू करने से पहले फिर से कुछ बेसिक बातें क्लियर कराना चाहता हूं। बहुत अच्छे छोटे पॉइंट्स हैं। फिर मैं ओम्स लॉ को प्रैक्टिकली यहां एक्सप्लेन करूंगा, देन थ्योरेटिकली वी विल डिक्टेट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। रीड दीज क्वेश्चंस। Have you ever wondered what constitutes electricity? How does it flow in an electric circuit? What are the factors that control or regulate the current through circuit? Okay? How does it flow in an electric circuit? What are the factors that control or regulate the current through the electric circuit? In this chapter, let us understand and learn more about electricity. We are aware that the flowing water constitutes water current in reverse. Similarly, when electric charge flows through a conductor, for example, through a metallic wire, we say there is an electric current in the conductor, in this case, a metallic wire. Electric circuit. A continuous and closed path of an electric current is called an electric circuit. Now, what happens if the circuit is broken? The current stops flowing and the bulb does not glow. Scientific definition of an electric current. Electric current is expressed by the amount of charge flowing through a particular area in unit time. In other words, it is the rate of flow of electric charges. If a net charge Q flows across any cross section of a conductor in time t, then the current I through the cross section is I is equal to Q upon T. The electric current is expressed by a unit called ampere, and an instrument which measures electric current in a circuit is known as ammeter. It is always connected in series in a circuit through which the current is to be measured. एमीटर को हमेशा सीरीज में। Conventionally, it is considered that the current flows from positive to negative in an electric circuit. But the actual fact is, current is a flow of electrons and its direction is from negative to positive. Therefore, the direction of electric current is taken as opposite to the direction of flow of electrons, which are negative charges. Potential difference. When a cell is connected to a conducting circuit element, the potential difference sets the charges in motion in the conductor and produces an electric current. We define the electric potential difference voltmeter. Two points in an electric circuit carrying some current as the work done to move a unit charge from one point to the other. Potential difference V between 2 points is equal to work done W upon charge Q. The SI unit of electric potential difference is volt, V. The potential difference is measured by voltmeter. The voltmeter is always connected in parallel across the points between which the potential difference is to. हमेशा वोल्टमीटर को किस में ज्वाइन करते हैं? पैरेलल में। किसमें? पैरेलल में।
और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है? वोल्ट, वर्क बाय चार्ज। 1 वोल्ट की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती होती है। डिफाइन 1 वोल्ट, तो क्या डिफाइन करेंगे? इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन in flowing a charge of 1 coulomb, then the potential is treated as 1 volt. Okay? Okay बच्चों, क्लियर है सारी बातें? ये वोल्ट मीटर को किस में लगाते हैं? पैरेलल पे। ए मीटर को किस में लगाते हैं? सीरीज में। ए मीटर क्या मेजर करता है? इलेक्ट्रिक करंट। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब इन दोनों चीजों को रिलेट किया किसने? ओम्स ने, साइमन ओम्स ने। उसने एक लॉ दिया विच इज नोन एज ओम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और ओम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट वाज दैट लॉ? उसने देखा कि अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल अप्लाई किया जाएगा, अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल अप्लाई किया जाएगा, means when you will connect any battery or cell across this conductor, then current will be established in it. Then current will be established in it. It means the potential is directly proportional to the amount of flowing current. जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना ज्यादा करंट, जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना ज्यादा करंट। उसने प्रैक्टिकली पोटेंशियल की अलग अलग वैल्यूज अप्लाई की और करंट को ऑब्जर्व किया और उनके बीच एक ग्राफ प्लॉट किया। वहां से उसने एक लॉ स्टेट किया नोन एज Ohm's law of electricity. So my task in today's lecture is to clear the concept of Ohm's law. हमारा जो आज का लेक्चर है वो किस पे बेस्ड है? दिस इज द हार्ट ऑफ द चैप्टर। करंट इलेक्ट्रिसिटी का बिल्कुल बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है, दिस इज ओम्स लॉ। ठीक है, ये एक ऐसा लॉ जो आज शुरू हुआ है, टिल लास्ट डे ऑफ चैप्टर ये मैं यूज करता रहूंगा। ओम्स लॉ, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ? According to this law, if physical conditions of the conductor like temperature, pressure, strain, etc. are kept constant, then potential difference applied across any circuit is directly proportional to the current flowing through circuit.
that is V proportional to I. प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं, कांस्टेंट लगता है, सिंबल यूज किया कैपिटल आर. दिस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी known as resistance of the conductor. Resistance of the conductor known as resistance of the conductor. सारा चैप्टर इस पैरामीटर के अराउंड घूमेगा. यस, स्ट्रेट लाइन ग्राफ. इस ग्राफ की स्लोप पता ना अब आपको, 9th में बड़ा अच्छा किया था. y एक्सिस बाय x एक्सिस. अगर मेरे पास ये हो, ये vi, ये iv, इसकी स्लोप सारा का सारा चैप्टर इस आर के अबाउट घूमेगा. आर क्या है, बड़े लेक्चर चाहिए मुझे आर को एक्सप्लेन करने के लिए. सो पहले प्रैक्टिकली आपको दिखाना चाहता हूं ओम्स लॉ का सेटअप. ओम्स लॉ कैसे सेटअप हुआ, ओम्स लॉ के बारे में प्रैक्टिकली क्या चीज रियलाइज की गई. आइए ओम्स लॉ स्टडी करते हैं प्रॉपर. नोट कर लिया बेटा पहले आपने ये नोट कीजिए. फिर मैं प्रैक्टिकली आपको पहले ओम्स लॉ का सेटअप समझाऊं, उसमें क्या क्या यूज किया प्रैक्टिकल परफॉर्म करते वक्त, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए, वायर यूज की, बल्ब यूज किया, वोल्ट मीटर, ए मीटर, सारा कुछ कैसे सेटअप है वो सिखाता हूं. फिर हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि आर क्या है. ओके. Ohm's law. Now we will discuss the relation between potential difference and current with an activity. Take nichrome wire. Actually, it is an alloy of nickel, chromium, manganese and iron. Take an ammeter, a voltmeter and 4 cells of 1.5 volts each. Procedure. Connect ammeter, nichrome wire, cell and plug key in series and voltmeter in parallel. We can get the circuit diagram like this. First, we connect only one cell in the circuit. सिर्फ एक take cell. the ammeter and voltmeter readings. Tabulate the values in the table. Now connect two cells and take ammeter, voltmeter readings. Tabulate the values in the table. Repeat this experiment with 3 and 4 cells and take readings of ammeter and voltmeter. Tabulate values in the table. Plot a graph between V and I. Take current on x-axis and potential difference on y-axis. y एक्सिस की तरफ v, x एक्सिस की तरफ I. नंबर ऑफ सेल्स 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4.
हर एक सेल 1.5 वोल्ट का था, जब एक लोगे तो 1.5 वोल्ट, दो लोगे तो 3, तीन लोगे तो 4.5, चार लोगे तो 6 वोल्ट। आप पोटेंशियल को बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। उसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू जो नोट की 2.7, 5.4, 8.4, 10.6। आपने पोटेंशियल बढ़ाया, करंट भी बढ़ा। V बाय आई, V बाय आई, V बाय आई, V बाय आई, जब रेशियो ली सारी वैल्यूज आई 0.55, 0.55, 0.55, 0.55। इसका मतलब V बाय आई की रेशियो जो है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब V प्रोपोर्शनल टू I है, और इसकी रेशियो जो रहेगी वो क्या रहेगी, एक कांस्टेंट। ये ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल सेटअप नहीं है, ये ओम्स लॉ जस्ट प्रूव करने के लिए आपकी अपनी एक्टिविटी है। अगर आपके 10th क्लास में आपको कोई एक्टिविटी पूछे कि ओम्स लॉ किस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, तो वायर लीजिए, 4 सेल लीजिए और A मीटर वोल्ट मीटर लगाइए और झटपट रीडिंग नोट कीजिए, आपके प्रैक्टिकल हो जाएगा। ठीक है, सिंपल लेवल पे V, एक सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 1.5 के उसके अकॉर्डिंग V बढ़ा रहे हो, करंट भी बढ़ रहा है, पर V बाय आई की रेशियो क्या रह रही है, सेम। V बाय आई की रेशियो को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। We can observe that the given line passing through the origin, and we can say that V by I ratio is constant. This experiment was practically observed by George Simon Ohm in 1827. According to this potential difference, V across the ends of wire in a circuit V is directly proportional to current I flowing through it at constant temperature. This is called Ohm's law. From this, V by I is equal to constant, that is, V by I is equal to R, or V is equal to IR. Here, the constant R is called resistance. It is the property of a conductor to resist the flow of charges through it. Its SI unit is ohm. It is represented by Greek letter ohms. According to Ohm's law, R is equal to V by I. If the potential difference across the two ends of the conductor is 1 volt and current through it 1 ampere, then the resistance R of the conductor is 1 ohm. इसकी डेफिनेशन 1 ओम की। 1 ohm is equal to 1 volt by 1 ampere. From Ohm's law, I equals to V by R. We can say that current is inversely proportional to resistance R. पता चला अब आपको अब मैं प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं, प्रैक्टिकली दिखाता हूं मैं अब आपको कि ओम्स लॉ जब उसने प्रैक्टिकल किया था, ये तो आपकी एक एक्टिविटी है, लेकिन जब प्रैक्टिकल प्रॉपरली किया, रियोस्टेट लेके, ए मीटर लेके, वोल्ट मीटर लेके, ठीक है, लैब में जब हम प्रैक्टिकली इसको करते हैं तो बड़ा सिंपल ट्रैक है। तो वो कैसे किया, उसने भी ये एक्टिविटी ही मेन चीज है, ठीक है। पर कंक्लूजन क्या निकला कि जब पोटेंशियल अप्लाई किया जाएगा किसी वायर के क्रॉस, किसी सर्किट के क्रॉस, जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना ज्यादा करंट, जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना ज्यादा करंट। पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनेट टू द करंट फ्लोइंग प्रोवाइडेड, कहते हैं फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर केप्ट कांस्टेंट। वायर का टेम्परेचर फिक्स रहे, वायर का प्रेशर फिक्स रहे, वायर के ऊपर स्ट्रेन ना पड़ा हो, ठीक है। तो ओम्स लॉ, पहले हमने ये ग्राफ जज किया कि यही हमारा एक्टिविटी में भी आया, यही ग्राफ। अब अगर हम बात करें ओम्स लॉ की प्रैक्टिकल ट्रैक की, Ohm's law statements of the conductor show difference in schematical representation of Ohm's law. ये देखिए, Shown here is a circuit with a suitable voltmeter
for measuring the potential difference V across a resistance box Q, and a milliammeter for measuring the current I flowing through the resistance box. मैं आपको थोड़े से जो इंस्ट्रूमेंट्स आपने देखने हैं अपनी लैब में क्लियर करवा दूं। ये एम में लिखा है मिली एमीटर, ये वोल्ट मीटर, ये ऐसा बॉक्स होता है, इस पे काफी सारी कीज होती हैं, इसको रेजिस्टेंस बॉक्स कहते हैं। ये बैटरी है, ये की है, की मतलब एज ए स्विच। ये है रियोस्टैट, रियोस्टैट मतलब वेरिएबल रेजिस्टर। इसके ऊपर एक स्लाइडर होता है, जब हम स्लाइडर को ऐसे मूव करते हैं तो इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी करती है, इसको बोलते हैं रियोस्टैट, वेरिएबल रेजिस्टर। मिली एमीटर और एमीटर, जब करंट बहुत छोटी वैल्यूज का होता है तो मिली एमीटर यूज करते हैं, ठीक है। अदरवाइज एमीटर का पर्पस है करंट मेजर करना, मिली एमीटर का मतलब क्या, बहुत थोड़ा करंट मेजर करना। रेजिस्टेंस बॉक्स, वोल्ट मीटर, रियोस्टैट, बैटरी, की, ये सारे सेटअप लैब में यूज होते हैं प्रैक्टिकल करते वक्त। A rheostat is used for varying the current and potential difference in a circuit. Click on the key to close the circuit. Record the values of V and I in the observation table. Now vary the position of the slider of the rheostat and record V and I. Record at least 5 values of V and I by adjusting the position of the slider of the rheostat. अलग-अलग वैल्यूज। Calculate V by I in each case. The value of V by I is found to be equal to a constant R, which is the resistance of the conductor, thus verifying the resistance is known. Remember the relation between V, R and R. Any of the variables simply hide. ये तीन पैरामीटर्स है जो आपस में रिलेटेड है, ठीक है। V, I, R, ठीक है। और अगर आपने R निकालना है तो V बाई I, अगर आपने I निकालना है तो V बाई R, अगर आपने V निकालना है तो I R। ये डिवाइड हो रहा है, R निकालना है V बाई I निकालना है V बाई R, V निकालना है I R, दिस पार्ट, ठीक। तो तीन पैरामीटर्स, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, रेजिस्टेंस, ठीक है। वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, बस ये कभी ना भूलना, ये वाला कंटेंट, दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो करंट आएगा। पहले पोटेंशियल अप्लाई करना फिर करंट आना है, पहले नहीं करंट आ जाना, ठीक है। V और I इसकी स्लोप रेजिस्टेंस, I और V इसकी स्लोप रेजिस्टेंस, 1 बाय R। ये उल्टा जे स्लोप क्या होती है, y एक्सिस बाय x एक्सिस, स्लोप यहां क्या होगी, y एक्सिस बाय x एक्सिस, I बाय v मींस 1 बाय R, दिस पार्ट, ठीक है। हाँ जी, पता चला बच्चों। अब मेरा टास्क क्या रहेगा, रेजिस्टेंस के बारे में सारी डिस्कशन करनी। किसके बारे, रेजिस्टेंस के बारे में, नोट कीजिए। तो बच्चों पता चला ओम्स लॉ, यहां क्या आता है, यहां क्या आता है, V इक्वल टू आई आर, I इक्वल टू V बाई आर, R इक्वल टू V बाई I, ट्राइंगल, ठीक है जी। तो अगर आपसे कोई पूछे, मान लीजिए ये एक कंडक्टर का पीस है,
ठीक है जी। इसके साथ मैंने लगाया सीरीज में एमीटर, मिली एमीटर लगाना। मिली एमीटर सिंबल ये यूज करते हैं जब डायग्रामेटिकल, ठीक है। इस कंडक्टर के साथ मैंने साथ में लगाया रियोस्टैट। क्या है ये? रियोस्टैट वेरिएबल रेजिस्टर होता है। फिर मैंने लगाई की। क्लियर है जी? ठीक। आप इसको चाहे ऐसे कर लो, रियोस्टैट के साथ डायरेक्ट ऐसे क्या लगाई? की लगाई। फिर मैंने लगाया यहाँ पर ये की, सेल लगाया, बैटरी लगा लो चाहे, दिस थिंग, पॉजिटिव नेगेटिव, देन पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या है? बैटरी। जैसे ही की ऑन करोगे करंट चलेगा। इसके क्रॉस लगा दो वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर से वोल्टेज की रीडिंग, ए मीटर से एक करंट की रीडिंग। तो क्या प्लॉट हुआ? V प्रोपोर्शनल टू I आया और V इक्वल टू क्या आया? IR। V इक्वल टू IR। क्लियर हुई बात बेटा? ये अगर आपको कोई पूछे एक्सपेरिमेंटल कैसे प्लॉट करना, तो आप ये डायग्राम कॉपी पे ड्रा करेंगे। ये वोल्ट मीटर, ए मीटर, रियोस्टैट, की, बैटरी, प्रेस करनी जबकि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव चलना है, ये वोल्टेज की रीडिंग आएगी, ये ए मीटर करंट की रीडिंग देगा, प्रोपोर्शनल। ग्राफ प्लॉट किया तो कैसे? ये चीज, तो इसकी R क्या होगा फिर? V/I। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द टॉपिक। व्हाट इज R? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वर्ड बना रेजिस्ट से। रेजिस्ट मतलब क्या? टू अपोज। ये प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है। because of which it opposes the flow of current through it. Property of the conductor because of which it opposes the flow of current through it. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हो अपोजिशन
offered by conductor to the flow of current. आपसे कोई वर्ड पूछे रेजिस्टर, तो वर्ड बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट which opposes flow of current. उस कंपोनेंट को, उस पार्ट को, सर्किट के उस हिस्से को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक रेजिस्टर। रेजिस्टर ये सिंबल होता है रेजिस्टर का। इसका मतलब है फिक्स्ड वैल्यू, इसका मतलब है वेरिएबल वैल्यू, वैल्यू वेरी कर सकती है, और ये है रियोस्टेट। रियोस्टेट, ठीक है। तो ऐसे हम सिंबल्स ये यूज करते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। इसका एसआई यूनिट होता है ओम, सिंबल है, इस सिंबल को बोलते हैं ओमेगा। ओम 1 वोल्ट ओवर 1 एम्पियर। अगर किसी सर्किट के क्रॉस 1 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई किया जाए, 1 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई किया जाए और उस सर्किट में करंट फ्लो करे 1 एम्पियर, करंट फ्लो करे 1 एम्पियर, तो इसका मतलब है उस सर्किट का रेजिस्टेंस है 1 ओम। 1 ओम, ओके, ठीक है जी। ओम की वैल्यू क्या? 1 वोल्ट ओवर 1 एम्पियर। 1 वोल्ट ओवर 1 एम्पियर। क्लियर? अब आप कहोगे जी, ये पूछ रही है तनिष्का कि इसका कॉज क्या है सर, ये होता क्यों है? क्यों जी रिहान, होता क्यों है रेजिस्टेंस? नहीं, मुहिंदर नहीं पता। सुनिए, जब हम किसी कंडक्टर के इंटरनल स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें तो उसमें बहुत सारे ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो मूव कर रहे हैं। दे आर नॉट इन फ्री स्टेट, दे आर रादर यू कैन से दे आर नॉट इन फ्रीज्ड स्टेट। वो रुके हुए नहीं है, वो लगातार मोशन में है, ठीक है। अब ये जो एरिया है ये खुला एरिया है, मैं यहां पर इजीली ऐसे मूव कर सकता हूं। यहां पर आप बैठे हो तो मैं बेंचेस में से ऐसे मूव कर सकता हूं कोई? नो। इसी तरह से जब कंडक्टर है, कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ, मैं इधर दिखाता हूं, ये देखिए, मान लीजिए ये कंडक्टर है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऐसे 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 रैंडमली कोलाइड हो रहे हैं और मूव कर रहे हैं, ठीक है जी। जब अगर किसी ने यहां से पास होना होगा तो उसकी मोशन को क्या मिलेगी? अपोजिशन मिलेगी ना।
बस यही है रूट कॉज रेजिस्टेंस का। आपने जब आंसर लिखना है कि व्हाट इज कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, तो हम लिखेंगे एज वी नो इनसाइड ए कंडक्टर देयर आर सो मेनी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which are colliding with each other as well as with the walls of the conductor. Whenever current starts flowing from one end to the other end, this motion or this flow of the current is opposed by the collisions of the electrons, and hence it suffers opposition, and that opposition is nothing but it is called resistance of the conductor. पता चला कॉज क्या है रेजिस्टेंस का? अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स विद इन द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, अब आती बात फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, आज भी एक्सप्लेन करूंगा। बहुत बड़ा टॉपिक है, कल एक्सप्लेनेशन होगी, पर शॉर्ट फॉर्म में resistance depends on two factors for the time being. Two factors. Number one, dimensions of the conductor. Dimensions में उसकी length, उसका area of cross section. And number two, nature of material of the conductor. कोई वायर कॉपर की है, कोई एल्यूमिनियम की है, कोई सिल्वर की है, कोई नाइक्रोम की है, अलग अलग तरह का मटेरियल है, अलग अलग तरह की अपोजिशन होगी। Dimensions, मटेरियल, डायमेंशंस, मटेरियल। डायमेंशंस में क्या? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, रेहान क्या? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। और मटेरियल में क्या? किस मटेरियल की वो वायर बनी हुई है, किस मटेरियल की वो वायर, टंगस्टन की, कॉपर की, सिल्वर की, एल्यूमिनियम की, नाइक्रोम की, किसकी वो वायर, इस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। बहुत अच्छा फॉर्मेट बनता है न्यूमेरिकल वाइज रेजिस्टेंस का। तो आज पहले अभी इतना ही नोट कीजिए, इतने ही नोट्स बनाइए, कल शेयर करूंगा फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। होपफुली ओम्स लॉ की क्लियरिटी हुई आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर।